Hello kids, how are you all? Welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Students, welcome to your English class. Now let's continue with our English revision. In our previous lecture, we have completed till question number 2D. Choose the correct option. Hope you all have prepared it. You learn कर लिया ना सबने? Now let's start with question number 3A. Answer the following. So now first question, what is the poem about? The poem is about the poet's love for nature. What does the poet mean by the term grown up river? यानी पोएट का मीनिंग क्या है? ग्रोन अप रिवर का मीनिंग, द पोएट मेंट बाय द टर्म ग्रोन अप रिवर एज अ बिग रिवर, यानी बहुत बड़ा रिवर. विच ट्री डिड द पोएट क्लाइम? पोएट कौन सा ट्री क्लाइम करता है? द पोएट क्लाइम द बनियान ट्री. What did the poet see in the garden? The poet saw many flowers, children in the garden. Where do the roads lead into? यानी रोड कहाँ तक जाता है? The roads lead into fairyland. fairyland तक जाता है. When do the children dine in the fairyland? अब fairyland में वो लोग कब खाना खाते हैं? The children in the fairyland dine at 5 o'clock को. ओके, नाउ राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट. कोई भी 3 साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, होमी भाभा, CV रमन एंड विक्रम साराभाई आर द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट. यू कैन राइट एनी नेम. ओके, 3 साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं. हु सेटअप इसरो? ISRO. विक्रम साराभाई सेटअप इसरो, यानी इसरो किसने स्टार्ट किया, बनाया? तो विक्रम साराभाई. हाउ डिड विक्रम साराभाई सपोर्ट डॉक्टर होमी भाभा? विक्रम साराभाई ने कैसे सपोर्ट किया था? विक्रम साराभाई सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया. यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कैसे हेल्प किया? जो जहाँ से रॉकेट छोड़ते हैं ना, वो फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बिल्ड करने में उन्हें सपोर्ट किया, सेट करने में. What did Aryabhatta gave us? Aryabhatta gave us the concept of zero and the place value system in mathematics. Aryabhatta was a great mathematician. उन्होंने हमें क्या दिया? कौन सा कॉन्सेप्ट? ज़ीरो का और प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू यानी हम पढ़ते हैं ना यूनिट, टेंस, 100, वो कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया. Who was Aryabhatta? Aryabhatta was a Indian mathematician and astronomer. What does eureka means in Greek? Greek में eureka का means, in Greek eureka means I have found it. What did the Jia's father give her? Jia's father gave her a little boat, यानी छोटी सी boat as a birthday gift. Describe the boat. It was a beautiful red boat with a milk white sail. What did Dhruv want to do? Dhruv wanted to sail the boat once, यानी ध्रुव को एक बार बोट चलानी थी. Why was Dhruv hurt? Dhruv was hurt because Jia did not let him sail the boat, यानी वो चलाने नहीं देती है बोट, इसीलिए ध्रुव हर्ट था. Why was Jia bored? Jia was bored because she did not enjoy playing with boat by all herself. यानी जिया अब क्यों बोर हो गई? क्योंकि अकेले न्यू टॉय था तो उसे मज़ा आ रही थी, पर अब वो अकेले खेल खेल कर बोर हो गई बोट के साथ. What did जिया wish? अब जिया क्या विश करती है? जिया wished ध्रुव वुड प्ले विथ हर अगेन, यानी ध्रुव उसके साथ खेले. What did the children do? The children ran out and put their paper boats in the stream by the road. How did the boat sail? The boats rose and fell with the tiny waves. बोट कैसे चल रही थी? छोटी छोटी जो वेव्स आ रही थी तो उससे वो चल रही थी बोट. What happened to Jia's boat? अब जिया की बोट को क्या हुआ? A big piece of wood hit Jia's boat and it broke into pieces. यानी बहुत बड़ा एक वुड का लॉग था, वो उससे बोट से टकरा गया और उसकी बोट टूट गई. What did Rip drink? Rip क्या ड्रिंक करते हैं? Rip drank some of the pink water from the barrel. Rip drink कुछ पिंक कलर का वाटर होता है वो पी लेते हैं. What happened to Rip after he drank the pink water? After Rip drank the pink water he fell asleep. वो सो जाते हैं.
What happened to Rip's gun? Rip's gun was covered in rust, यानी जंग लग गया था. How did Rip feel when he woke up? When Rip woke up, he felt confused and hungry. जब वो उठते हैं तो वो बहुत confused और hungry होते हैं. Now, what did the lion say to the sheep? The lion said to the sheep that he wished to eat her for dinner. यानी लायन क्या बोलता है कि उसे sheep को खाना है. What was the sheep's answer? The sheep told the lion to clean his mouth because it stank. अब sheep क्या आंसर करती है कि पहले मुझे खाने से पहले तुम अपना माउथ क्लीन करो because your mouth stank, यानी स्मेल, बैड स्मेल आ रही है. Now here we have completed question answers. Now let's start with our short question answers. What will you do to save the water? अब पानी को वाटर सेव करने के लिए आप क्या करोगे? So see, I will not keep the tap open while brushing. We should not. Okay, here it is some mistake. I will save the water. I will be careful. यहाँ पर should नहीं आएगा. I will not keep the tap open while brushing. Here should has been come in mistake से should हो गया है type. तो I will not keep the tap open while brushing. I will save water. I will be careful to close all the taps at home and in school also. स्कूल में भी हम वॉशरूम में या जाते हैं तो सारे टैप्स हम जब हैंड वॉश करते हैं तो प्रॉपर टैप्स बंद करने हैं. What will you do to save trees? We should not cut trees. We should plant trees. We will water the trees and plants. यानी हम ट्रीज़ को सेव करने के लिए क्या करेंगे? कट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करेंगे और अगर हमारे पास कभी वाटर है, हमारे आसपास जो ट्रीज़ है हम उसमें वाटर डालेंगे. ना व्हाट विल यू डू टू सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स? अब बर्ड्स और एनिमल्स को हम कैसे सेव कर सकते हैं? तो वी विल नॉट हर्ट एनिमल एंड बर्ड्स. हम एनिमल और बर्ड को नहीं मारेंगे. वी विल सेव द इंजर्ड बर्ड एंड एनिमल. अगर कोई बर्ड या एनिमल हमें इंजर्ड दिखता है तो हम उन्हें बचाएंगे. हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, उस पर कॉल करके हम उन्हें सेव करेंगे. वॉट हैपन व्हेन आर्चिमिडीज स्लिड इनटू द बाथटब? जब आर्चिमिडीज स्लिड मीन्स स्लीप होके बाथटब में गिरते हैं तो क्या होता है? When Archimedes slid into the bathtub, he noticed a large quantity of water flowed over the brim of the bathtub. आर्चिमिडीज क्या देखते हैं जैसे ही वो गिरते हैं कि बहुत सारा पानी ब्रीम यानी ऊपर से टॉप बाथटब के ऊपर से बाहर गिर गया. राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एक्सरसाइज. नाउ हम सब एक्सरसाइज करते हैं ना मॉर्निंग में. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एक्सरसाइज? एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एक्सरसाइज आर: exercise make us feel fit, healthy and strong. It relaxes our brain. It controls our weight. Our body gets stronger and healthier. Exercise control anger and negative feelings. And exercise की वजह से हम एक तो healthy fit रहते हैं, हमारा brain relax होता है, हमारा weight control. अभी nowadays in कोरोना अभी लॉकडाउन में हमारा weight ज़्यादा बच्चों का put on हो गया है तो we should do the exercise. ओके क्योंकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे. एंड एक्सरसाइज की वजह से हमें कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी नहीं आती, हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4A आरटीसी. आरटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मीन्स एक्सप्लेन द लाइन्स. सी जो हमें पोएम का पैराग्राफ दिया हुआ है वो लाइन्स को हमें एक्सप्लेन करनी है. आपके पेपर में आपको पोएम का पैराग्राफ दिया होगा. ओके सो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हमें लिखना है आपको. सो रेफरेंस में क्या लिखना है कि ये लाइन्स कौन से पोएम की है एंड हु इज़ द पोएट. ओके एंड इन कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू राइट, you have to explain these lines. Okay, so reference, see, if I could find a higher tree, further and further I should see, to where the grown up river slips into a sea among the ships. यानी बहुत हाई ट्री अगर होंगे तो हमें और उसके ऊपर चढ़कर और आगे आगे तक का दिखेगा दरिया, सी दिखेगा. पोएट इज सेइंग राइट. नाउ टू वेयर द ग्रोन अप यानी जो बड़े बड़े रिवर्स है वो कहाँ जाते हैं? इनटू द सी अमॉन्ग द शिप्स. सो दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम लव फॉर नेचर रिटन बाय R.L. स्टीवेंसन. ये पोएम का नाम क्या है? लव फॉर नेचर. एंड हु हैज़ रिटन? पोएट कौन है? R.L. स्टीवेंसन. कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पोएम ग्रोन अप रिवर
मीन्स बिग रिवर। अब यहाँ पर जो ग्रोन अप रिवर लिखा है उसका मतलब बिग रिवर। इट इज़ द स्काईज मिरर, यानी ऊपर से स्काई हमें पानी में पूरा दिखता है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि इट इज़ स्काईज मिरर। द पोएट वॉन्ट, एंड पोएट को और हायर ट्रीज़ चाहिए थे, बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज़ के, उसमें से उन्हें दरिया और दिखे कि रिवर कहाँ सी में जाकर मिलता है। ओके, सो लाइक दिस वे यू हैव टू राइट RTC। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रीज़। हमें ट्रीज़ के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है। So trees are our best friend. Trees are very useful to us. Trees give us fruit and medicines. We also get wood, paper from trees. Trees give us shade. Birds build their nest on the trees. Trees make our surrounding clean and green. Trees bring rain. We should not cut trees. We should save trees. We should plant more trees. See, ट्रीज़ के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। उसमें से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन्स, वुड, कितनी सारी चीज़ें मिलती है, राइट। हमारा सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन रहता है और ट्रीज़ की वजह से पॉल्यूशन कम होता है। सो हमें ट्रीज़ को सेव करने चाहिए और कट नहीं करना चाहिए ट्रीज़ को। नाउ कंप्लीट द लाइन। सी स्टूडेंट्स, इन योर यूनिट 4 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 देयर इज़ अ पोएम, क्लॉक टिक वाली। सो यू हैव टू लर्न द होल पोएम। पूरी पोएम आपको लर्न करनी है। उसमें से कोई भी लाइंस आपको लिखने के लिए पेपर में आ सकती है। फर्स्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन लिखी होगी, बीच की लाइंस आपको फिल करनी है। सो यू हैव टू लर्न होल पोएम। So here we have completed with our English revision. Now all the best students, you have to prepare all the topics. So bye everyone.